عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بھی کھڑے ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، جوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، سب لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے گا؟ آج بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں مگر دنیا میں آج ہمارے پاس میں آپشن ہے، آج ہمارے پاس میں آپشن ہے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اور ہاں، یہاں تو ہم بہترین کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا حفاتا، ننگے پیر کھڑے ہوں گے، عراتا، ننگے بدن کھڑے ہوں گے، غرلا، بغیر ختنے کے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سب اللہ کے سامنے ننگے بدن کھڑے ہوں گے، برہنہ کھڑے ہوں گے، حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی مرد بھی کھڑے ہوں گے، عورتیں بھی کھڑی ہوں گی؟ کہاں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی، جس وقت مرد ان کی طرف دیکھیں گے عورتوں کو کتنی شرم آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن کے وقت بھی حضرت عائشہ کو اگر فکر ہو رہی ہے تو اپنی شرم و حیا کی فکر ہو رہی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ شرم و حیا اتنا بڑا زیور ہے، اتنا بڑا گہنا ہے، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے شرم و حیا۔ پردہ آج دیکھ لیجئے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ جناب صدر محترم، معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائی محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج کی اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں جس میں ہر آدمی زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمانا چاہتا ہے، وہ یہ بھول گیا ہے کہ کتنی بھی دولت کما لے اور کتنی بھی اچھی زندگی گزار لے، لیکن ایک دن ایسا آنا ہے کہ مال و دولت اس کا یہیں چھوٹ جائے گا اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے چلا جائے گا، یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے انسان جتنی محنت
اس دنیا کو کمانے کے لیے کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ محنت اس کو اپنی آخرت کو بنانے۔ তো আঞ্জলের একটা ছেলে তানভীর নামে হারিয়ে গেছে, এলান করতে বলা হয়েছিল। তো যাই হোক, কেউ যদি পান তো স্টেজে পৌঁছে দেবেন। हो गया चेक? हो गया? तो उसको दुनिया बनाने से ज्यादा मेहनत आखिरत को बनाने में करना चाहिए। इंसान अपनी मौत से भाग नहीं सकता, कितना भी जी ले लेकिन मरेगा। और अगर नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारी है तो अल्लाह के अजाब से भी नहीं भाग सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप नेक आमाल करें तो मौत से तो फिर भी नहीं भाग सकते, लेकिन नेक आमाल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचा जा सकता है। मौत से तो भाग नहीं सकते, मौत तो दोनों हालत में आना है। फरमा बरदार जिंदगी गुजारेंगे तब भी और नाफरमानों वाली जिंदगी गुजारेंगे तब भी। हाँ, इतना हो सकता है कि अजाब टल जाए, अजाब हट जाए, अजाब ख़त्म हो जाए। आज इसी टॉपिक पर कुछ बात करनी है आप लोगों से। वक्त आप लोगों को बताया जा चुका है मेरा कि कितना है। थोड़ी देर आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, शायद इस गुफ्तगू से कुछ आखिरत की फ़िक्र हमारे और आपके अंदर पैदा हो जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, ऐ लोगो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का क्या वादा है? अल्लाह ने जितने भी वादे किए हैं वो सारे सच्चे हैं। अल्लाह ने जितने भी वादे किए वो सारे हक हैं। अल्लाह ने कहा इंसान को मौत आनी है तो मरता है। अल्लाह ने कहा कि कब्र के अंदर सवाल व जवाब होंगे तो सवाल व जवाब होंगे। अल्लाह ने कहा कि क़यामत आएगी तो आएगी। अल्लाह ने कहा कि क़यामत के दिन इंसानों को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा तो किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि फिर जब नाम-ए-आमाल बटेंगे और उसके बाद इंसानों का फैसला होगा कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, तो ये जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा हक है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, जो बता दिया सच बता दिया। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ओ दुनिया के लोगों, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे के अंदर न फंसा दे, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, कहीं ये तुम ना समझने लगो कि बस यही जिंदगी है, इसके बाद में कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, यहीं पर रहना है और जितना भी रहना है यहीं पे जिंदगी गुजारनी है, जितने दिन भी रुकना है यहीं पर रुकना है, जितने दिन भी गुजारने यहीं पर गुजारने हैं। अल्लाह फरमाता है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए, उनको भी यही लगता था कि हमेशा हमेश के लिए दुनिया है, सारे लोग मरते होंगे हम थोड़ी मरेंगे, सारे लोग जाते होंगे हम थोड़ी जाएंगे, सारे लोग अपने घर वालों को अपने खानदान को छोड़कर जाते होंगे, लेकिन हमें जाना नहीं है। उन्होंने अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी, अल्लाह की नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारी, लेकिन गए वो भी इस दुनिया से अपनी आखिरत को बर्बाद करके। तो दुनिया के चक्कर में रह के आखिरत बर्बाद ना कर लेना, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें बर्बाद न कर दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया हमेशा हमेश के लिए नहीं है, जो भी इस दुनिया के अंदर आया उसको एक दिन इस दुनिया से चला जाना है, इस दुनिया से वापस जाना है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। अक्लमंद इंसान कौन है? इस दुनिया की जिंदगी में मजे से रहे और आखिरत में सज़े काटे, या अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया में रहकर
दुनिया की जिंदगी को भी बेहतर गुजारे और उससे अपनी आखिरत को भी संवारे ताकि आखिरत भी उसकी बेहतर हो जाए। आपने एक लफ्ज सुना होगा दुनिया, हम भी बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। कभी इस लफ्ज पर गौर किया कि दुनिया के माना क्या होता है? दुनिया कहते किसको हैं? आज आप लोगों को दुनिया के माना बता रहा हूं, याद रखिएगा। अरबी जबान के अंदर दुनिया कहते हैं करीब की चीज को, जो चीज पास में होती है उसको दुनिया बोला जाता है। और इसके आगे हयात का लफ्ज बढ़ाकर हयातुद दुनिया जब बोला जाता है तो कहते हैं करीब की जिंदगी। हयात के माना जिंदगी और दुनिया के माना करीब। तो करीब की जिंदगी, ये लफ्ज बता रहा है कि इस करीब की जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी भी है जो बाद की जिंदगी है, दूर की जिंदगी है। ये पास की है, वो दूर की है, ये करीब की है, वो बाद की है। ये लफ्ज पर अगर आप गौर कर लें, जिस लफ्ज को हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया, इस लफ्ज के ऊपर अगर हम गौर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया के माना पास की जिंदगी और इसके बाद इसका मतलब यह है कि कोई दूसरी भी जिंदगी आने वाली है। तो दुनिया के माना पास की चीज, और दुनिया के एक माना और होता है, एक दुनिया के माना होता है कमजोर, हकीर, जलील। यह भी दुनिया के माना होता है। इससे भी पता चलता है कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है आखिरत के मुकाबले में। यह दुनिया कमजोर है, हकीर है, जलील है, छोटी सी है। किसके मुकाबले में? आखिरत के मुकाबले में। तो लफ्ज दुनिया पर गौर कर लें तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया खत्म होने वाली चीज है, हमेशा रहने वाली चीज ही नहीं है। लफ्ज ही ऐसा है, ये लफ्ज ही दुनिया ऐसा है। सिर्फ एक लफ्ज पर गौर कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे, दुनिया की जिंदगी के अंदर रह के धोखे में न पड़ जाना। ये खत्म होने वाली जिंदगी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है। बड़ी मशहूर हदीस है, एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचे, एक इंसान की शक्ल में। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसान की शक्ल में आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर बैठ गए। मशहूर हदीस है, हदीस की किताबों के अंदर ये काफ़ी आपको मिल जाएगी। हदीस जिब्रील के नाम से ये हदीस है। सहाबा इकराम के बीच में अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं और जिब्रील अमीन एक इंसान की शक्ल में आते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर बैठ जाते हैं और आकर सवाल करते हैं। कई सवाल किए, उन सवालों में से एक सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछा, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मल ईमान, ईमान किसको कहते हैं, मुझे ये बताओ। आज हमारे नौजवानों से पूछ लो ईमान का क्या मतलब होता है, नहीं बता सकते। आज हमारे बुजुर्गों से पूछो ईमान किसको कहते हैं, नहीं मालूम। हम मुसलमान हैं, क्यों हैं? क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए मुसलमान हैं। वरना इस्लाम के माना क्या है, ईमान के माना क्या है, इस्लाम के अरकान कितने हैं, ईमान के अरकान कितने हैं, कुछ नहीं पता। मेरे मुसलमान भाइयों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान नाम है हमारा, मुसलमानों वाला नाम है। मुसलमान इसलिए है कि माँ बाप हमारे मुसलमान थे, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। वरना हकीकत यह है कि न ईमान के बारे में कुछ पता है, न इस्लाम के बारे में कुछ पता है, न इस्लाम के अरकान के बारे में मालूम है, न ईमान के अरकान के बारे में मालूम है। तो जिब्रील अमीन ने पूछा, अल्लाह के नबी ईमान किसको कहते हैं, मुझे ये बताइए। प्यारे नबी का जवाब सुनो। आपने फरमाया, मैं आपको बता रहा हूं, आप गिनते जाइएगा कि ईमान क्या है। फरमाया, अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। 6 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। पहली चीज ईमान किसका नाम है, फरमाया अल्लाह पर ईमान लाओ।
व मलाइकती, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, व रसूलिही, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। और 5वें नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर भी ईमान लाओ, वल क़द्र खैरिही, 6ठे नंबर पे आपने फरमाया कि तकदीर पर ईमान लाओ। तो 6 चीजें हैं ईमान के अरकान। कितने हैं? 6 अरकान हैं ईमान के, याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं लेकिन उसके फरिश्तों को नहीं मानता, बताओ वो मुसलमान होगा कि नहीं? अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह के फरिश्तों को तो मानता हूं, उसके रसूलों को तो मानता हूं, उसकी किताबों को भी मानता हूं, लेकिन मैं अल्लाह को ही नहीं मानता, बताइए मुसलमान होगा? नहीं होगा। इन 6 में से किसी के बारे में भी वो शक करता है, किसी के बारे में भी वो इनकार करता है, बंदा ईमान से निकल जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा, वो ना मोमिन रहेगा ना वो मुसलमान रहेगा। और इन 6 चीजों में से 5वीं चीज कौन सी है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल यौमिल आखिर, क़यामत का दिन, आखिरत का दिन। मालूम यह हुआ कि ये क़यामत के दिन हमारा ईमान इसके ऊपर होना है, क़यामत के दिन हमारे ईमान के अंदर शामिल है, क़यामत का दिन हमारे अकीदे के अंदर शामिल है, क़यामत का दिन हमारे ईमान और अकीदे के अंदर शामिल है। हम इसका इनकार तो छोड़ो, इसके बारे में शक भी नहीं कर सकते। तो एक जगह अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, और दूसरी जगह प्यारे नबी फरमा रहा है कि बदले का दिन, क़यामत का दिन आने वाला है, ये तुम्हारे ईमान और ये तुम्हारे अकीदे का हिस्सा है। और अब भी अगर मुसलमान इसकी तैयारी ना करे और मुसलमान इसके बारे में शक में पड़ा रहे, तो बताइए मुसलमानों आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए और हमारी क्या हालत हो गई। ये क़यामत का दिन, यह आखिरत का दिन, ये इतना आसान नहीं है जितना हमने और आपने समझ लिया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला एक दूसरी जगह फरमाता है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से, वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डरो। कौन से दिन से डरो? हमारी जिंदगी के अंदर भी दिन आते हैं, कभी इतवार का, कभी सोमवार का, कभी मंगल, कभी बुध, कभी जुमरात। हमारी जिंदगी के अंदर भी दिन आते हैं, लेकिन यहां पर किसी दिन से डरने के लिए कहा जा रहा है, और वो कौन सा दिन है? फरमाया तुरजाऊन फीही इलल्लाह, वो दिन होगा जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा।